کر چھتر مار کر انجوائے کرنے والی گورنمنٹ اگر یہ کہتی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن 1973 ہے، یہ پاکستان کا آئین ہے، اس کو جمہوریت کہتے ہیں، سوری ٹو سے وی آر دا پارٹ آف دا گورنمنٹ، لیکن وی شوڈ سے پراؤڈلی کہ ایسے ہی لوگ جو نہ صرف غریب متوسط طبقے کی آنکھوں میں وہ کتابیں دکھا کر اس کو آسمانی صحیفہ قرار دے کر اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈال کر اس قسم کی ریولوشن کی جب باتیں آئیں تو ریت میں شتر مرغ کی طرح منہ ڈال دیتے ہیں. آئی ایم سوری، ایم کے ہم ایک حقیقت پسندانہ جماعت ہے. الطاف بھائی کا جو بیان ہے اگر اسے سمجھ سکتے ہیں اس پہ ڈیبیٹ کریں. پاکستان کے کسی جنرل کی الطاف بھائی نے تعریف نہیں کی. پاکستان نے جب محب وطن جنرل کی بات کی تو آج یہ تک کہا کہ وہ جنرلز جنہوں نے پاکستان کا سودا کیا ہے وہ بھی لٹکے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، ہم کسی پارٹی کی طرح کسی جنرل جیلانی کی پیداوار نہیں ہے جیسمین. وی آر ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی. ہم کسی ڈرائنگ روم میں ہمیں کسی نے گود لے کر کسی عامر نے دودھ پلا کر جوان نہیں کیا. ہمارے اپنے سٹیکس ہیں اور غریب متوسط طبقے میں ہماری جڑیں ہیں. صوبہ پنجاب یا صوبہ خیبر پختونخوا سالانہ آپ لوگوں کے مرنے کی شرح نکالیے. 10-10 ہزار لوگ. یہ جواز ہے آئین کو پیک اپ کرنے کا. نو انقلاب کا پیک اپ آف آئین، لیکن آئین کی اگر سپرمیسی قائم کرنی ہے تو آئین کے اندر جو اقدامات لکھے ہیں انہیں ہمیں گراس روٹ لیول تک منتقل کرنا ہوگا. خرم دستگیر صاحب، آپ سیٹسفائیڈ ہیں ان کے آنسر سے؟ جی، ان کی بہت مہربانی. شاید چونکہ جس انقلاب کی یہ بات کر رہے ہیں اور جن چوکوں پہ لاشیں لٹکانے کی بات کر رہے ہیں تو وہ لاشیں تو شاید ان کے کراچی میں ہر چوراہے پر بکھری ہوئی ہیں اور پہلے سے ہی لاشیں ہیں. اگر یہ انقلاب ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے. میں پھر یہ گزارش کروں گا آپ کو سیالکوٹ کا انقلاب بلوچستان کی بڑی طویل گفتگو فرمائی ہے. میں پھر عوام کو اور ناظرین کو یاد کرانا ہے کہ جب اکبر بگٹی کا مرڈر ہوا ایم کیو ایم سینٹر اور سندھ میں دونوں جگہ حکومت میں تھی اور ایم کیو ایم نے اس پر استعفے نہیں دیے. تو ازراہ کرم بہت سارے ایشوز کے اوپر اپنی ذمہ داری قبول فرمائے اور یہ کہیں کہ اگر انقلاب آنا ہے، اگر آپ حکومتوں کا حصہ بن کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انقلاب لے کر آنا ہے اور یہ کہنا کہ جی ہم فوجی وردی پہن کر آئیں گے، میری گزارش صرف یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ پاکستان مانگے تانگوں کے کپڑوں سے نہیں چل سکتا. اگر جمہوری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر یہ کہیں، میں پھر دہراتا ہوں کہ الیکشن میں ہم یہ مینیفیسٹو لے کر آئیں گے، ہم یہ اس کے اوپر پورے ملک کے اوپر بات کریں گے، بات تو درست ہوتی، لیکن جب مارشل لا کا لفظ آتا ہے تو وہ از خود یہ کہنا ہے کہ آپ آئین سے ماورا بات کر رہے ہیں اور آئین سے ماورا ہو کر ہم کسی بھی طرح پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا. اور جس انقلاب کی یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، میری گزارش جیسمین اگر آپ سن لیں. جی. پہلی بات ہے یہ انقلاب ہے کہ جب پاکستان کی پرنسپل اپوزیشن پارٹی بجائے یہ کہ وہ وزارتوں کے لیے یا حکومت میں آنے کے لیے جو ہے کوئی سودے بازی کر رہی ہوتی، وہ ایجنڈا لے کر آئے ہیں کہ جناب یہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان سروائیو اسی طرح کرے گا جس طرح اگر اس کو آپ تبدیل نہیں کریں گے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو، احتساب کے معاملات کو، سپریم کورٹ کے احکامات کو ماننے میں، جو تمام ہمارے اکنامک ایشوز ہیں، حکومت کے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کٹ کرنے ہیں، تو پھر تو آپ کہیں کہ یہ تو یہ انقلاب ہے کہ بجائے پاور ہنگر کے، بجائے وزارتیں لینے کے ایجنڈا کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور یہ بھی انقلاب ہے. انہوں نے بلوچستان کی بات کی کہ جب موقع ہے این ایف سی کا تو پنجاب نے اپنا حصہ کاٹ کر بلوچستان کو دیا جو اربوں روپے بنتے ہیں. تو یہ بلوچستان کی سپورٹ تو قومی وادی ہے تو اس طرح ہوتی ہے. اور یہ بھی انقلاب ہے. یہ انہوں نے بات کی لا اینڈ آرڈر پرابلم ہر جگہ ہے، لیکن یہ وہ پنجاب ہے جہاں ہزاروں نوکریاں پولیس میں اسٹرکٹلی میرٹ پر دی گئی ہیں، ہزاروں نوکریاں آج بھی ایجوکیٹرز بھرتی ہوئے اسٹرکٹلی میرٹ پر ہوئے. ہر جگہ گورننس ہیں، لیکن ہم سیریسلی ذمہ داری قبول کر کے ان سے عہدہ برا ہو رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ کراچی میں بھی اسی طرح ذمہ داری قبول کریں اور یہ کہیں کہ جناب ہم مل کر تینوں پارٹیاں، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی، مل کر کراچی کے ایشوز کو سالو کریں گے. کراچی میرا شہر ہے، میرا دل ہے. اگر وہاں اس طرح لاشیں گرتی رہیں گی اور یہ ٹھیک ہے پنجاب، انہوں نے کہا کراچی میں ہونے والے ٹارگٹ کلرز بھی بہت جلدی پکڑے جائیں گے. غفور حیدری صاحب، یہ آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کے ہمارے ساتھ لوگ شامل ہیں نمائندے، تو انہوں نے اپنی وضاحت دی. اب آپ سیٹسفائیڈ ہیں ان کے جواب سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی کچھ فرمایا درست فرمایا، ان کا نقطہ نظر ہے. لیکن میں نے جو شروع میں گزارش کی کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے، آپ کو پتا ہے پاکستان میں کوئی 30-35 سال تو جنرلوں نے حکومت کی، ٹھیک، اور سیاستدانوں نے کوئی
25-30 साल इन्होंने हुकूमत की। लेकिन उस 30-35 साल में सर सियासतदान भी साथ रहे ना, जर्नैलों के, वो कौन सा अलग बैठे थे? मेरी गुजारिश सुने, और वोट के जरिए, इलेक्शन के जरिए ये सारा कुछ होता रहा। 18 फरवरी 2008 को भी एक इलेक्शन हुआ। पब्लिक ने, अवाम ने जमहूरी कुव्वतों को कामयाबी अता की, वोट्स के जरिए से अता की। लेकिन ये 3 साला दौर में आप देख रहे हैं कि जो रवैये है, क्या पाकिस्तान को आगे ले जाने का है या पीछे ले जाने का है, और जो सूरत हाल है, क्या हम परवेज मुशर्रफ के जो पॉलिसियां हैं उनको हमने तर्क की, असर नौ खारिजा पॉलिसी की तश्कील की, क्या हमारे पार्लियामेंट ने एक मुत्तफका करारदाद पास की, क्या हमने उस पर अमल दरामद की। 18वीं तरमीम मुत्तफका एक तरमीम है जो मैं समझता हूं कि एक तारीख साज कारनामा है पार्लियामेंट का। क्या हमने उस पर अमल दरामद शुरू की, क्या उसको हमने अमली जामा पहनाया? तो जैस्मीन, बात यह है कि मैंने कहा कि हमारा बुनियादी मसला क्या है सर? वायदे होते हैं, मुआहदात होते हैं, उनकी खिलाफ वर्जी होती है। ठीक। तो फिर यकीनन एक दिन आएगा कि इनकिलाब आएगा, इनकिलाब पसमानदा तबके से आएगा, पिसे हुए तबके से आएगा, और ये जो शीश महलों में, ताज महलों में बैठे हुए हैं, ओके, तो गफूर हैदरी साहब भी मान गए ना, बहा के ले जाएगा। ये मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो भी मान गए, वो भी कह रहे हैं कि इस तबके से आएगा। समीउल्लाह खान साहब, आप एग्री करते हैं? अब वो तो मौलाना साहब एग्री कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनकी सोच हो सकती है, लेकिन इनकलाब, अब ये 10 रुपए पेट्रोल जो बढ़ने जा रहा है, इसके बाद तो क्या इनकलाबी सूरत हाल नहीं होगी तो क्या होगा? मेरे ख्याल में 10 रुपए पेट्रोल की तो एक अब कमेटी बन गई है, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की एक मुश्तरका कमेटी है, जो पेट्रोलियम प्राइसेस का जो मैकेनिज्म है इसको देखेगी भी और उस पर फैसला भी करेगी। लेकिन मुझे ख्वाजा इजहार साहब काफी मुश्किल में लग रहे हैं कि वो अल्ताफ भाई की जो उन्होंने पॉइंट दिए हैं उसको वो डिफेंड नहीं कर पा रहे, इसलिए वो कह रहे हैं जी सती अब इनकी अल्ताफ भाई की तकरीर समझने के लिए मुझे लगता है कि कोई नोबल इनाम याफ्ता कोई दानश्वर जो है वो बुलाने पड़ेंगे जो इसकी डेप्थ को हमें समझा सकें। पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनको तो जो उन्होंने आज फरमाया है वही समझ आ रहा है। अब ये डेप्थ में जो जाने वाली है वो कोई बाहर से हमें लोग लाने पड़ेंगे जो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं वही कह रहा हूँ, खालिद साहब मुल्क के गरीब मुतवस्सित लोग अल्ताफ भाई की बात को समझ गए, लेकिन ये अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैंने आपकी बात को इंटरप्ट नहीं किया, मेहरबानी करें, मैंने आपकी बात में इंटरप्ट नहीं किया। अब आपने बलूचिस्तान की एक तस्वीर कशी की और कहा कि वहां कोई 14 अगस्त बना के दिखाए। अब ये बलूचिस्तान को इस हालत में जिस वर्दी ने पहुंचाया अल्ताफ भाई को, वो वर्दी पहनने का शौक आ गया है। इतना तजाद है, इतनी कंफ्यूजन है कि बलूचिस्तान को जिस वर्दी ने इस हालत में पहुंचाया, आपको वो वर्दी पहनने का इतना शौक है कि आपने मीडिया के ऊपर लाइव उस वर्दी को पहनने का ऐलान फरमा दिया है। जहां तक पाकिस्तान के गफूर हैदरी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के बुनियादी इश्यूज को आइडेंटिफाई करना चाहिए और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला जो है। क्या मसला है आप लोगों का? आप लोग दोनों कोalition पार्टनर हैं। ये क्या है? ये मतलब कोalition पार्टनर है तो मतलब इसके बाद और कौन सी हुकूमत होती है और कौन सा इख्तियार होता है? ये बैठ के कह रहे हैं पाकिस्तान के इशू को समझने का। अगर ये भी हमसे ये बात कह रहे हैं तो फिर ये बताइए ये अवाम किधर जाएगी? और बात ये नहीं है, देखें, बात ये कि क़ायदे तहरीक अल्ताफ भाई का एक बयान पाकिस्तान की तमाम गरीब मुतवस्सित तबके को समझ भी आ रहा है, वो सुन भी रहे हैं, वो देख भी रहे हैं। आप अपना डिफेंड करें, पूरे मुल्क की सुप्रीम पावर आपके पास है, पूरे करप्शन स्कैंडल आपके डंके बज रहे हैं, एमकेएम के डंके नहीं बज रहे हैं या मौलाना गफूर हैदरी साहब के डंके नहीं बज रहे हैं। मैं आपसे ये गुफ्तगू करना नहीं चाह रहा। दूसरी बात, किसी अमीरुल मोमिनीन वाली पॉलिसी पर
5,000 रुपए टैक्स देने वाली पॉलिसी के ऊपर या कोई शहनशाही खिताब हासिल करने वाली पॉलिसी के ऊपर ये अवाम अब बेवकूफ नहीं बनेगी। आपको मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप हुकूमती पार्टनर हैं, मैं आपका एहतराम करना चाहता हूं। दस्तगीर साहब ये सिस्टम मत फरमाएं। जी खुर्रम दस्तगीर साहब सिर्फ ये जी फरमा दीजिए। और आपकी पुलिस मेरिट बता देता हूं मैं, पुलिस मेरिट, गलत स्टैटिस्टिक्स पुलिस मेरिट सुन लें। मत करें। एक सेकंड। हमारे कायद जो 5,000 इन्होंने जिक्र किया, उनके बिजनेस अकबर बुक्ती का जब कत्ल हुआ, टैक्स देते हैं। अकबर बुक्ती का 10 साल में 6 अरब से ज्यादा के टैक्सेस अरे सुनिए जनाब, पाकिस्तान के चक्कर को मैं मुझे पता है, मुझे पता है की बात कर करके नहीं मुझे पता है, बाप बेटे का 2.5 करोड़ का मकरूज है, बाप बेटे का 2.5 करोड़ का मकरूज है, और अकबर बुक्ती की शहादत की बात करने वाले पाकिस्तान को टैक्स देते हैं। अरे मेरे भाई, करोड़ों रुपए में टैक्स देते हैं। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि जिस पार्टी के ये कारकुन है, उनके कायद पाकिस्तान की शहरी नहीं रहे, ज्यादा वो पाकिस्तान पर टैक्स नहीं देते। हम यहाँ रहते हैं और हम करोड़ों रुपया हमारे कायदीन, हमारे लीडरान पाकिस्तान को पे करते हैं, पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान के आइन को फॉलो करना चाहते हैं। नहीं अल्ताफ भाई पे एक बात की, देखें आपकी पार्टी के खाली लीडर को ये फैसिलिटी हासिल है कि वो पड़ोसी ममालिक में 10 साल का एग्रीमेंट करके रह सकता है। ये फैसिलिटी और किसी को हासिल नहीं है। अल्ताफ भाई तो पॉलिटिकल असाइलम में है वहां पे, और जिस वक्त अकबर बुक्ती की शहादत हुई तो वो तो वहां मजे कर रहे थे, वहां पर तो वो सऊदी बादशाहों के साथ बैठे हुए थे। आ जाते पाकिस्तान, बचा लेते, कर देते नारा। हमने तो स्ट्राइक्स कॉल किए, हमने हुकूमतें छोड़ने की बात की। मेरी जो गुजारिश है कि पहले टैक्स का जवाब दे दें कि पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो टैक्स देते हैं, जो लोग पाकिस्तान के शहरी ना हो। मेरी गुजारिश पाकिस्तान के अवाम के दर्द के लिए खुदारा पाकिस्तान पर रहम फरमाए। पाकिस्तान के जो शहरी हैं उन्हीं का पाकिस्तान पर हक है। अगर आपने अपना पाकिस्तानी सारी दौलत खुद ही पाकिस्तान के चाहने वालों से गुजारिश है, किसी और मुल्क के शहरी और किसी और मुल्क के वालों से गुजारिश है, फिर पाकिस्तान के आइन की इसीलिए वैल्यू नहीं रही। इनकिलाब लाने के लिए एक कौम होना बहुत जरूरी है। क्या हम एक कौम हैं? जी कौम तो हम आइन कायम रहेगा तो ये कौम बनेगी। चूंकि अगर पाकिस्तान में आइन परजिस्ट नहीं करता, जो आज पाकिस्तान के बहुत सारे सीरियस इश्यूज हैं, आज जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, उसकी जड़ में बहुत सारे जो हैं वो हमारी जो मिलिट्री इंटरवेंशंस हुई हैं, जो गैर आईनी इकदाम हुए, वो इस पाकिस्तान की तो 1999 का गम खाया जा रहा है। हम उनको इसके ऊपर हम एक बेसिक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम आइन के ऊपर कायम रहेंगे, सियासी खिलाफ करेंगे। ये आपस में लड़ रहे हैं, आप मुझे जरा मौका दे दें। देखिए, इनकिलाब वो जमात ला सकती है जो क्या में पाकिस्तान के मकासद को सामने लेकर चले। मैंने जो गुजारिश की कि यहां बात है रवैयों की, बात है पॉलिसियों की, बात है किरदार की, तो मेरे ख्याल में ये सब ठीक कह रहे हैं। लेकिन 60 साल 63 साल गुजरने के बाद भी अब अगर हम एक कौम नहीं बन सके, देखिए एक कौम हम कैसे बनेंगे? क्या में पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पूरा नहीं हुआ। पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, आज तक जमहूरियत पनप न सकी। तो फिर जस्मीन आप बताएं कि वो कौन सी पुरकशिश बात है, कौन सा पुरकशिश नारा है कि हम वो नारा लगाएं, कौम कहे कि हाँ ठीक है हम इस पर बहुत अच्छी आपने बात की। मुत्तहिद कौन करेगा कौम को? तो हमने पारा पारा किया है, कौमी यकजहती को तबाह कर दिया गया है। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि ये नारे तो हो सकते हैं, लेकिन ये है कि इनकिलाब उस वक्त आएगा जिन मकासद के लिए पाकिस्तान बना, उन मकासद को सामने लेकर आप आगे चले, गरीब को सहारा दे। बिल्कुल खत्म हुआ जाता है, लेकिन ये डिस्कशन हमारी पूरा हफ्ता जारी रहेगी। ये डिस्कशन पूरा हफ्ता जारी रहेगी। मैं तमाम अपने गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सबका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आया। लेकिन एक चीज जो गफूर हैदरी साहब ने एंड में की है, वो हम कल भी इशू उठाएंगे कि वो कौन सा नारा अब दिया जाएगा, वो कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, और वो कौन सा तिलिस्माती कैरेक्टर होगा इस मुल्क में जो इस इनकलाब को लीड करेगा। इसी नोट पर नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चड्डी वाले
ہو رہا ہے یہاں پہ؟ واٹس گوئنگ آن؟ کچھ نہیں مس، کل سیکرس ہے نا، تو اس کی پریکٹس کر رہا ہوں. چلو نکلو یہاں سے.